गुड मॉर्निंग बेटा। हम चैप्टर नंबर 3 यूएस हेजीमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट डज हेजीमनी मीन्स। वर्चस्व का क्या अर्थ है? Politics is about power. Just as individuals wants to gain and retain power, groups too wants to gain and retain power. We routinely talk of someone becoming powerful and someone doing something for power. In the case of world politics, two countries and group of countries are engaged in constantly trying to gain and retain power. This power is in the form of military dominations, economic power, political clout and cultural superiority. तो जिस तरह से हम पावर के बारे में, शक्ति के बारे में समझते हैं दुनिया में, पॉलिटिक्स में लगभग वैसे तो सभी कंट्री चाहते हैं, पर कुछ कंट्री वर्ल्ड में जो है अपना डोमिनेशन बनाए रखना चाहते हैं। मिलिट्री क्षेत्र में, मतलब सेना के क्षेत्र में, सेना शक्ति के क्षेत्र में, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, कल्चर, अपनी सुपीरियरिटी बनाए रखना चाहते हैं और अपना दबदबा दुनिया में कायम रखना चाहते हैं। वही हेजेमनी है, उसी को हम हेजेमनी कहते हैं। Therefore, if we wanted to understand world politics, it is necessary that we understand the distribution of power among the countries of the world. For instance, during the year of the Cold War 1945 to 1991, the power was divided between the two groups of the country, and the US and the Soviet Union represents the two camps of the center of the power in international politics during that period. The collapse of the Soviet Union left the world with only a single power, the United States of America. Sometimes the international system is dominated by a sole superpower or hyperpower. It's called the unipolar system. अब देखिए बेटा, हमने पढ़ा था जब कोल्ड वॉर था तो दुनिया में हेजेमनी दो कंट्रीज की थी, सोवियत यूनियन की और यूएसएसआर की। पर जैसे सोवियत यूनियन टूट गया, दुनिया में एक ही सुपर पावर रह गया और वो सुपर पावर रह गया अमेरिका का। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में 1991 के बाद हेजेमनी जो स्टैब्लिश हुई वो अमेरिका की स्टैब्लिश हुई। हेजेमनी एज अ हार्ड पावर. The root of the word hegemony is in the classical Greek. The word implies the leadership of the predominance of one state and was originally used to denote the preponderant positions of Athens vis-a-vis the other city-states. Ancient Greek. Thus, the first meaning of hegemony relates to the relations patterns and the balance of the military capability between the states. तो ये जो हेजेमनी वर्ड है ये ग्रीक से लिया गया वर्ड है। ग्रीक आपको ग्रीक के जब शासनकाल था उस समय, ग्रीस में जो पुराना एशियन पीरियड था उस समय वहाँ पे हेजेमनी थी और वहाँ पे एथेंस की हेजेमनी ज़्यादा थी। एथेंस का वर्चस्व ज़्यादा था और एथेंस वो स्टेट था जहाँ से सोक्रेटिस हमारे आते हैं। सोक्रेटिस का जन्म एथेंस में हुआ था और वहीं से बिलोंग करते थे वो। In this notion, the hegemony as a military predominance that is especially germane to the current positions and the role of US in world politics. Do you remember Aisha, who lost her leg in the American missile attack? It is a hard power of hegemony that has spoken Aisha's body, if not her spirit. तो आयशा का हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में आयशा केस पढ़ा था। आयशा जो लड़की बगदाद में रहती थी और उसका एक पैर मिसाइल अटैक में चला गया। वहाँ यूएस हेजेमनी, यूएस का जो मिलिट्री पावर अटैक था 2003 में, अमेरिका ने जो इराक पर अटैक किया था जिसकी वजह से आयशा का पैर चला गया। तो वहाँ भी हम यूएस का हेजेमनी देख रहे हैं, उसका हार्ड पावर, उसका मिलिट्री पावर को हम देखने को मिलता है वहाँ पर। The bedrock of the contemporary US power lies in the overwhelming superiority of the military power. American military dominance today is both absolute and relative. In absolute terms, the US today has military capability that can reach any point of the planets accurately, lethally, and a real time, thereby crippling the adversary while its own forces are sheltered to the maximum extent possible from the distance war.
तो ये वर्ल्ड मैप देखिए, वर्ल्ड मैप में ये जो आपको पूरा वर्ल्ड दिखाया जा रहा है, तो अमेरिका ने अपने सैन्य कमान को इस तरह से विभाजित कर रखा है कि उसके सैन्य कमान दुनिया के किसी भी क्षेत्र पर सटीक निशाना साध सकते हैं। तो दुनिया के इस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए, वॉर करने के लिए, अटैक करने के लिए उसके पास अलग कमान है, तो इस क्षेत्र के लिए अलग कमान है। और जितना आपको ये ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर अटैक करने के लिए उसके पास अलग कमान है, ये एरिया जो है यहाँ के लिए अलग और यहाँ के लिए अलग। तो पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने के लिए, पूरी दुनिया में अटैक करने के लिए अमेरिका ने अपने कमान को ही डिवाइड कर रखा। ये मैप भी अमेरिका के पावर को, मिलिट्री पावर को दर्शाता है। बट even more awesome than the absolute capability of the US, in fact, that no other power today can remotely match them. The US today spent more on its military capability than the next 12 powers combined. Furthermore, a large chunk of the Pentagon's budget goes into the military research and development, or in other words, technology. Thus, the military dominance the US is not just based on higher military spending, but on a qualitative gap or technological chasm that no other power can present conceivably span. Undoubtedly, the US interventions in Iraq reveal several American vulnerabilities. The US has not been able to force the Iraqi peoples into submitting to the occupation forces of the US-led coalition. To fully understand the nature of the American weaknesses, however, we need to have the historical perspective. Imperial power through history has been using military forces to accomplish only 4 tasks: to conquer, deter, punish, and police. As the Iraq invasion shows the American capability to conquer, its formidable. Similarly, the US capability to deter and to push in is self-evident, where the US military capability has thus far been shown to have possess both the ability and the desire of the establish certain norms. तो बेटा यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रखा है, तो यहाँ पर हम अमेरिका की मिलिट्री पावर को अच्छे से जान सकते हैं। अमेरिका अकेले अपने जो मिलिट्री पावर में, डिफेंस में जितना खर्च करता है, दुनिया के 12 बड़े देश कुल मिलाकर ही उतना खर्च करते हैं। चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, जापान, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन, ये सारे देश मिलाकर जितना अपने मिलिट्री पावर में, अपने सैन्य क्षमता में को बढ़ाने में खर्च करते हैं, सैन्य क्षमता में जितना पैसा लगाते हैं उतना अमेरिका अकेला ही लगाता है। तो इससे कंपेयर करके आप देख सकते हैं अमेरिका की सैन्य क्षमता कितनी ज़्यादा है। पर अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता की वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्से में भले ही काबू पा लिया। इराक पर उसने 2003 के आक्रमण के बाद काबू पा लिया था, पर अमेरिका की कमजोरी हमेशा रही है, अपने सैन्य ताकत के बल पर किसी इलाके पे कब्जा तो कर लेता है, पर वहाँ पर शासन व्यवस्था को दोबारा से मेंटेन करने में, पीस मेंटेन करने में हमेशा असफल ही रहता है। Hegemony in the second sense is reflected the role of playing the US in providing global public goods. By public goods, this means अभी हम अगला पढ़ेंगे हेजेमनी उनका जो है, हेजेमनी इनके इकोनॉमिक पावर को लेके, तो हमने आज यहीं तक पढ़ लेना है। The hegemony usually does this to its own advantage, but often to its relatively detriment, as its competitor take advantage of the openness of the world economy without paying the cost of maintaining the openness. तो बेटा हमने यूएस हेजेमनी जो है, यूएस हेजेमनी का उनके मिलिट्री पावर को आपको देखना है। अमेरिका मिलिट्री पावर को लेके, अपने हार्ड पावर को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो एक मैप हमें पूरी तरह से बता देता है कि अमेरिका की मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसने अपने सैन्य कमान को ही 5 हिस्सों में डिवाइड कर रखा जो पूरी दुनिया पे काबू पा सकता है। उसी तरह से दूसरा ये जो पिक्चर है, ये अमेरिका की पावर को बिल्कुल ही अच्छे से दर्शा देता है कि अमेरिका अकेले अपने सैन्य क्षमता के हथियार बनाने में, उसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में जितना खर्च करा, दुनिया के 12 देश, चाइना जिसे हम काफ़ी प्रोग्रेसिव मानते हैं, रशिया, फ्रांस, ये भी अमेरिका के अकेले का बजट नहीं, अमेरिका के अकेले के बराबर का बजट नहीं खर्च कर पाते हैं। तो यहीं से आप कंपेयर कर सकते हैं कि अमेरिका अपने मिलिट्री पावर को एक्सपांड करने में कितना ज़्यादा खर्च करता है, उसका मिलिट्री पावर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कल बेटा हम अमेरिका के इकोनॉमिक पावर को पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।